Right. So this is now for the second session today. आज हमारा जो second session है, this will be focused on an example जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी इनिशियल एग्जाम एक सिस्टम था, ब्लेंडिंग सिस्टम, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ऑफ ब्लेंडिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हमने डिज़ाइन पहले किया था स्टडी स्टेट में, और आज हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर इज़ आई थिंक 15.5, देखते हैं आगे जाके, जिसमें हम इसकी डायनेमिक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर बनाएंगे डायनेमिक मॉडल के हिसाब से। ठीक है, सो व्हाट आई एम शोइंग हियर इज द, अगर आपको इफ यू रिकॉल फ्रॉम हियर, this is the full description of system of the blending system जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमें कंट्रोल करना है आउटपुट कंपोजिशन x को by manipulating this flow rate, or we have some disturbances coming from the x1. इसका जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है, द ब्लॉक डायग्राम मॉडल, इट इज दिस वन, जिसमें हमारे पास वी हैव द सेट पॉइंट, and then we have GC controller, and we have the control valve, the process model, फिर disturbance का model है, and then we have this disturbance transfer function है, measurement है, the feed forward controller is here, right? So we have all these elements here, from set point for the outlet composition X इस composition के लिए। इसके अलावा जो disturbance variable है dV is this one, disturbance transfer function is this one, disturbance transfer function, or this is given here. We have the process model जिसको हम identify भी कर सकते हैं, process model, right? Feedback, this is the measurement system, measurement model है. And then we have the feedback controller here, feedback control. We have the feed forward controller here, feed forward controller on top. We have the transfer function of the control valve. And this is how they are interconnected. ठीक है, तो पूरा signal flow है, feedback and feed forward controller of the blending system. When we use only the feedback in B, we use feedback, तो आप देख सकते हैं कि इसमें overshoot भी है। feedback में आपके पास क्या क्या आ रहा है, we see overshoot, और जब feedback और feed forward को यूज़ किया तो आपके पास overshoot कम हो गया है। ठीक है, and ओके, सो और इसी तरीके से जो एक्स कंपोजिशन है, इसमें अगर आप देखें तो बहुत ओवरशूट तो तकरीबन सिमिलर है विद द स्टैटिक गेन, लेकिन जो आपके पास सेटलिंग टाइम है वो बहुत कम हुआ हुआ है। ठीक है, सो द ए केस इज अबाउट द फीडबैक कंट्रोलर विद एंड विदाउट द डायनेमिक कंपनसेशन ए, और बी में फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज in case of this B. तो अब हम इसको देखते हैं in the example. This is the example 15.1. Let's go and follow this whole example one by one. I just took it from the book ताकि हम इसको follow कर सकें. So considering the blending system, this is our blending system we have here in 15. Section 15.3 में ये वाला section discuss किया है. But now we will assume the pneumatic control valve and the IP transducer. Now a feedback and feed forward control system is to be designed to reduce the effect of disturbances in the feed composition X1. Feed composition is this X1. इसके अंदर we will have some kind of disturbances, feed composition. ठीक
Yeah, so there will be some effect disturbances in the feed composition, and the product composition is this one, X output product composition, right? Inlet flow rate W2, this is the inlet flow rate. इसको हम कंट्रोल करेंगे through this valve. So the inlet flow rate W2 can be manipulated. इसका मतलब है कि this is the variable available for over control signal. ठीक है, जिस चीज को आप मैनिपुलेट कर सकें, इसका मतलब है कि you can put some controller there, right? अगर नहीं भी लगा हुआ तो if someone says कि this is what we need to control or manipulate basically, वहाँ पे आपके पास कंट्रोलर लगेगा. ठीक है. Using the information given below, design the following control systems and compare the closed loop responses for a 0.2 step change in X1. ठीक है. So this is what we have to simulate. This is similar to the example जो आपको मैंने assignment के तौर पे दी हुई है. वो है I think 2 point, कौन सी example आपको दी थी मैंने? 2.1 I think. So there are 4 things here. सबसे पहला A में a feedback controller has to be designed based on the steady state model of the process. Steady state model की basis पे एक controller बनाना है. Second is the static and dynamic feedback controllers based on the linearized dynamic model. Linearized dynamic model हम किस तरह से बनाते हैं उसको थोड़ा सा go through करेंगे. Third is the एक PI controller बनाना है, a PI feedback controller based on the Ziegler-Nichols settings for the continuous cycling method. Now this is a kind of a tuning method. We will see कि अगर हम इसको अभी ही इसी क्लास में ही देखते हैं या इसकी जो ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं एग्जांपल में गिवन है, we will try to use them in the MATLAB. And then D part is the combined feedback feed-forward control system that consists of the feedback controller of the part 1. Part 1 का जो feedback controller है वो आपने use करना है, ठीक है, from here, and the PI controller of the part C, और ये feedback controller GC, और इन दोनों को combine करना है. Use the configuration in 15.1. तो जब आप combine करें तो we have to use this configuration of 15.11 in which we have the feedback controller, we have the feed forward controller, और ये इस तरह से दोनों add होके यहाँ पर support कर रहे हैं. ठीक है, in this combination. ठीक है, सवाल समझ में आ गया? सवाल में तो कोई issue नहीं है. Let me take a snap of the attendance. जी, अभी बता दीजिए, ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आई कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम 4 किस्म के कंट्रोलर्स बनाने जा रहे हैं और फिर उनका कंपैरिजन है. जी कोई सवाल यहाँ पर? इट्स क्लियर? ओके, इफ इट इज क्लियर देन वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ for the process information, assume we are given these values. इन्हीं को हम देख के यूज करेंगे. A pilot scale blending tank is considered here. इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 2 मीटर्स का है. इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर्स की है. ठीक है, सो इसकी जो हाइट है it is around the total height is 3 meters, और जो इसका इंटरनल डायमीटर है that is around 2 meters. The inlet flow rate W1 and the inlet composition X2 are constants. चूंकि हम steady state की बात कर रहे हैं, I'm talking about this feed forward controller based on the steady state model of the process. तो steady state model का मतलब है कि balanced है. steady state का मतलब है कि it is balanced right now. Everything is in balance, well balanced. So X1 and X2 are constants. And the nominal steady state operating conditions are these. तो हमने जिसको सेट किया वो क्या है? W1 बार, W1 जो है W1 बार is equals to 650 kgs per minute, और X1 जो है वो 0.2 है, which is a fraction. हाइट जो आपके पास लिक्विड की है वो 1.5 मीटर्स की मेंटेन्ड है. ओके, सो दीज आर द 3 थिंग्स. W2 जो हम पास ये कंट्रोल का है, it is maintained at 350 kgs per minute. X2 is maintained at 0.6. Rho value
is given 1 gram per cubic centimeter, and x bar is equals to 0.34. x bar is the outlet composition, और x2 जो है वो आपकी pure A material की composition है. And the flow head relation for the valve on the exit line here, this one, ये exit line है, exit line, और इस exit line में जो flow rate है W, वो बराबर है CV अंडर रूट, ठीक है, हेड प्रेशर के हिसाब से, ये है स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट इज दिस वन, ठीक है. सो दिस इज नॉट लीनियर रिलेशनशिप हियर फॉर द वाल्व, राइट. तो ये तो हमारे पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ तक. नेक्स्ट वी हैव द इंस्ट्रूमेंटेशन, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन की रेंज है फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वो 4 to 20 मिली एम्प्स यूज कर रहे हैं, राइट. एंड देन द थ्री थिंग्स हियर जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हैं वो क्या क्या है इसके सिस्टम में. एक तो आपके पास करंट टू प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, जिसको आप कहते हैं आईपी ट्रांसड्यूसर्स, राइट. करंट टू प्रेशर ट्रांसड्यूसर मतलब एक तरफ इसके होगा 4 to 20 मिली एम्प्स, और दूसरी तरफ इसका होगा 3 to 15 psi, ठीक है. एक तरफ ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल है सिग्नल, और दूसरी तरफ हमारे पास न्यूमेटिक सिग्नल है. नॉर्मली आपके पास जो न्यूमेटिक सिग्नल इज बेसिकली फॉर द न्यूमेटिक वाल्व्स. जी, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, फोकस ऑन दिस करंट टू प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इसको आप आईपी ट्रांसड्यूसर कहते हैं. acts as a linear device with negligible dynamics. The output signal changes from 3 to 15 psi when the input signal changes full scale from 4 to 20 milliamps. This is what we just discussed. So okay, so this is a linear device, no problem at all. Control valve. The behavior of the control valve can be approximated by a first order transfer function. Approximated by a first order transfer function with a time constant of 5 seconds, which is equivalent to, क्योंकि मिनट्स के अंदर है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बाकी यूनिट्स है मिनट में, ये मिनट्स में है, जो फ्लो रेट है वो मिनट्स के अंदर है, तो हमें इसको भी जो जितने भी टाइम के यूनिट्स हैं फिर उनको सेम करना पड़ेगा. तो 5 seconds equivalent to 0.0833 minutes. A 3 to 15 psi change in the signal to the control valve produces. अब 3 to 15 psi क्योंकि हम बात करें कंट्रोल वाल्व की, CV, तो इनपुट पे अगर आपके पास सिग्नल चेंज हो रहा है 3 to 15 psi, ये इनपुट है इसकी, ठीक है. तो आउटपुट जो है दिस इज कंट्रोल वाल्व. CV इज हियर, आई मीन CV मींस कंट्रोल वाल्व, ठीक है. इसको कंट्रोल वेरिएबल से कंफ्यूज ना करें, कंट्रोल वाल्व. It is producing a 3 to 15 psi change in the signal to the control valve produces a 300 kgs per minute change in W2. तो आउटपुट पे जो चेंज आता है वो तकरीबन 300 kgs per minute का चेंज करता है. So this is its transfer function, right? Okay, composition measurement. Composition measurement is 0 and span of each composition measurement transmitter are 0 and 0.5 mass fraction respectively. यानी 0 आपके पास ये है और स्पैन आपके पास है 0.5 का, तो ओवरऑल जो उसकी मेजरमेंट है वो 0 से 0.5 तक है. The output range is 4 to 20 milliamps. A 1 minute delay is associated with each composition measurement. So this is the delay of the यानी 1 minute का इसका रिस्पॉन्स टाइम है. ये तो पूरी प्रोसेस की इक्विपमेंट की डिटेल्स हो गई. नाउ द सॉल्यूशन इज कंसीडरिंग दिस ब्लॉक डायग्राम फॉर द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम. सबसे पहला सब चीज हम जब सॉल्व करेंगे, द फर्स्ट थिंग वाज दिस, हमें क्या करना है. पहला वाला सवाल जो था, पहला सवाल क्या है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को बनाना है बेस्ड ऑन द स्टेडी स्टेट मॉडल ऑफ द प्रोसेस, राइट.
So let's go and solve this one. So the first thing is, using the given information, we can calculate the following steady state gains. ये gains हम कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले तो IP. Remember IP was what? IP is this one. ठीक है, current to pressure transducer. और इसकी इनपुट पे और आउटपुट पे हमने देखा था, इनपुट पे 4 to 20 मिली एम्प्स है, इनपुट पे 4 to 20 मिली एम्प्स है और आउटपुट पे 3 to 15 psi. So this is what we are talking about. The first one is current to pressure transducer. ठीक है, IP. और इस IP में करंट टू प्रेशर ट्रांसड्यूसर की जो इनलेट है और आउटलेट, इसकी इनलेट इसका जो KIP है, इसको हमें फिगर आउट करना है कि ये क्या है. इसकी इनपुट पे जो चेंज है वो है 4 to 20 मिली एम्प्स और जो इसकी आउटपुट है वो 3 to 15 psi, राइट. सो इसका मतलब है कि इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ और इनपुट जो है वो 4 to 20 मिली एम्प्स है इनपुट पे, तो जो आउटपुट है अगर उसमें यहाँ पे 3 to 15, इफ दिस इज 3 एंड दिस इज 15 psi, तो 4 जब इनलेट पे 4 है तो आउटपुट जो आपके पास है वो 3 है. इनलेट पे अगर 20 मिली एम्प्स है तो आउटपुट पे आपके पास 15 है. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, KIP. सो वेरी सिंपल. अगर हम x और y की कोऑर्डिनेट्स देखें तो दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर 4 and 3, सेकंड कोऑर्डिनेट्स आर 20 and 15. ठीक है, सो जो स्लोप है उसका फॉर्मूला अगर याद करें तो y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is y2 15 minus 3 and the unit is psi, 20 minus 4 and the unit is milliamps. So overall हमारे पास जो आ गया KIP की वैल्यू आई वो 0.75 आ गई. Now for the KB को अगर हम देखें तो उन्होंने KB में क्या कहा था, KB में ये कहा था कि KB is what? KB is the control valve. कंट्रोल वाल्व में वो ये कह रहे हैं कि अगर 3 to 15 psi का चेंज अगर पूरा का पूरा चेंज आता है, then the control valve was able to produce 300 kgs per minute. एक मिनट में वो 300 kgs प्रोड्यूस करता है. So this is the output, 300 divided by the inlet. अच्छा, ये जो आपके पास जो KIP है इसकी जो आउटपुट है 3 to 15 psi. Now this is fed to the output of this 3 to 15 psi goes to control valve. Okay, और कंट्रोल वाल्व की जो आउटपुट है इट इज 3 के लिए वो 0 है और 15 psi पे जब वो चला जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस 300 kgs पर मिनट. सो यहाँ पर भी इसी तरीके से जब आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्लोप को, 300 minus 0 divided by 15 minus 3. So this will result to 300 divided by 12 and we will have 1225 kgs per minute psi. ठीक है, so this is how the second kV will be determined. KT क्या था हमारे पास, composition, और it said कि 0 to 0.5 and the output range is 4 to 20 milliamps. So the output is 4 to 20 milliamps, 20 minus 4, and the inlet span means अगर आपको span दिया हुआ है तो 0 to span is 0.5. span का मतलब क्या होता है? Can anybody tell me what is the meaning of a span? इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट से अगर आप देखें तो span क्या चीज होती है? Span is basically, मैं वहीं पे डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे. स्पैन क्या होता है किसी भी डिवाइस का? स्पैन ऑफ अ डिवाइस इज, स्पैन दो तरह के होते हैं. ठीक है, स्पैन आपके पास जो है, स्पैन आपके पास एक होगा इनपुट स्पैन, इनलेट स्पैन या इनपुट स्पैन,
और दूसरा जो आपके पास होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्पैन। एंड बेसिकली स्पैन टॉक्स अबाउट जो इनलेट स्पैन है, इट इज बेसिकली इन इनपुट स्पैन, ये भी कहता हूँ मैं, विल बी इक्वल्स टू इनपुट की जो एक्स मैक्स माइनस एक्स मेन होगा। ठीक है, तो अगर हम 4 to 20 मिली एम्प्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये है इनपुट सिग्नल चेंजेस फुल स्केल फ्रॉम 4 to 20 मिली एम्प्स। इसका मतलब है कि इसका अगर इनपुट स्पैन निकालूं तो मैक्सिमम वैल्यू है 20 मिली एम्प्स और मिनिमम वैल्यू है 4 मिली एम्प्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव 16 मिली एम्प्स। तो स्पैन इज 16 मिली एम्प, ये आपके पास स्पैन हो गया। इसी तरीके से कि अगर आपके पास आउटपुट है, किसी डिवाइस की आउटपुट जो है वो 3 to 15 psi है, तो 3 to 15 psi है, तो उसमें जो स्पैन होगा दैट विल बी व्हाट, सेकंड डेफिनेशन है स्पैन ऑफ 3 to 15 psi क्या हो जाएगा, ये 15 minus 3 equals to 12 psi। तो ये स्पैन आपके पास है, राइट। ओके, सो इन दिस कंपोजिशन इन्होंने डायरेक्टली हमें स्पैन दे दिया है कि स्पैन जो है वो 0.5 है। ठीक है, सो वी कैन यूज दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और फाइनली हमारे पास 32 मिली एम्प्स आ गया। ओके, और बिकॉज दिस इज गिविंग अस द आउटपुट, जो हमारे पास जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मेजरमेंट है, इसकी जो आउटपुट है वो है मिली एम्प्स के अंदर। तो इनपुट स्पैन इसका है 0.5 और आउटपुट स्पैन है 16 मिली एम्प्स। ठीक है, तो आउटपुट स्पैन इसका इसका जो आउटपुट स्पैन है वो है 16 मिली एम्प्स का, और इसका जो इनपुट स्पैन है दैट इज हाउ मच, 0.5। तो आपने आउटपुट स्पैन को डिवाइड कर दिया इनपुट स्पैन से, तो वी गेट दी ट्रांसफर। सो पहले केस के अंदर तो हमने ये स्टडी स्टेट गेन्स फिगर आउट कर लिए, अभी हमने जो निकाले हुए हैं स्टडी स्टेट गेन्स। अब इन वैल्यूज को हम रखेंगे, और देयर इज वन इक्वेशन 15.6, लेट मी गो बैक देयर, कीप इट हियर। 15.16 को मैं देखिए आता हूँ, वेट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके, right, so substitute into equations 15.16 to 15.19. 15.16 to 15.19 are, we have this one 15.6 इक्वेशन जो है ये हमने पहले की थी, पिछली स्लाइड्स में है, आई एम जस्ट रिपीटिंग देम हियर, जिसमें जो P of t is equals to C1 plus C2, and then we have KT times x of set point minus x 1mt plus C3। अभी इन कॉन्स्टेंट्स को मैं दोबारा डिस्क्लोज करता हूँ, x2 बार माइनस x सेट पॉइंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 15.16 in the book, and then we also have the constants where we have C1 की वैल्यू जो है this is equals to 4 minus W2 0 divided by KV KIP, and we have C2 equals to W1 bar and KV KIP KT, and finally we have C3
here I should write it here. C3 is equals to 4 plus KT x1 0. x1 0 is basically the initial value. Substituting this value 0, जब आप इसको 0 substitute करेंगे, initial disturbance and W1 0, so this value will go away. This whole factor C1 will go away, or we will have only 4 here. ठीक है, ये वैल्यू चली जाएगी. एंड देन वी हैव C2 की वैल्यूज में K1 K भी हमने कैलकुलेट कर लिया. एंड देन वी हैव दिस C2 is KIP, right? This is KIP. Okay, KIP भी हमारे पास है, KIP भी हमारे पास है, KT भी हमारे पास है. W1 bar is given. So finally और इस इक्वेशन में रखेंगे तो so this is the equation for the feed forward control law. पिछली स्लाइड्स में हमने कुछ लेक्चर्स में इसको सॉल्व किया था, अभी हम सिर्फ इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं. एंड दिस विल बी अवर द कंट्रोल लॉ. ओके, अच्छा, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्लीमेंट नाउ. सेकंड प्रॉब्लम वाज, जो सेकंड था, static and dynamic feed forward controllers based on the linearized dynamic model. So for the linearized dynamic model, the following expression for the ideal transfer function was derived. हमने अभी first lecture में इसको derive किया था, right? Now the process, okay, और इसके जो example 4.1 में its steady state models are being derived Kp upon tau s. Gp जो है, this can be represented by Kp upon tau s plus 1. Gd is represented by Kd upon tau s plus 1. Kp was given as I just showed you x2 bar minus x1 upon w bar. Kd is given by w1 bar upon, these are all nominal values. ठीक है, वॉच प्रीवियस लेक्चर्स, इनिशियली हमने ये किए थे. इनको सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, एंड देन वी विल बी एबल टू गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन वैल्यूज. ठीक है, सो वी हैव दिस ट्रांसफर फंक्शन हियर अवेलेबल. ट्रांसफर फंक्शंस फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन. अभी हमने देखा था स्टडी स्टेट 0.75 psi per milliamps, एंड ऑल्सो फॉर GT. अब GT के अंदर वी हैव टू ऐड द डिले. हमने डिले क्यों ऐड किया इसके अंदर? अगर हम GT पे वापस जाएं, ये जो ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन में ये कंपोजिशन की जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के अंदर वी हैव कैलकुलेटेड द कंपोजिशन गेन, लेकिन उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये इसमें 1 मिनट का टाइम डिले है. 1 मिनट टाइम डिले इज एसोसिएटेड विद ईच कंपोजिशन. सो एडिंग द डिले इज वेरी सिंपल, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये जो डिले है e to the power minus theta s is the delay, and here टाइम कितना है? इट इज 1 मिनट. जो मेजरमेंट कंपोजिशन का है, द डिवाइस measurement device has a delay of 1 minute. Therefore we can put e to the power minus theta s along with, it is like a transport delay. ये MATLAB के अंदर, in MATLAB it is available as transport delay. ठीक है, उसमें एक आपको इस तरह से सिंबल नजर आएगा सिम्बलिंग में, इन सिम्बलिंग. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल शो यू सिमुलेशन ऑफ दिस वन. सो एडिंग दिस, अभी हम इसकी कॉन्सेप्चुअली इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें. नेक्स्ट टाइम हम इसको MATLAB पे सिमुलिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे. Put e to the power minus theta s along with the steady state gain. Okay, and then GV को अगर देखें तो कंट्रोल वाल्व
हमने देखा तो द बिहेवियर ऑफ द कंट्रोल वाल्व कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। जब फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है कि देयर शुड बी समथिंग लाइक दिस k अपॉन 1 प्लस tau s, राइट। उसका k हमने कैलकुलेट कर लिया और tau जो है वो यहाँ बताया उन्होंने कि विद अ टाइम कांस्टेंट ऑफ 5 सेकंड्स और 0.0833 मिनट्स, एंड that's why you have tau here as a time delay, and this is the gain that we calculated on this spot for the control valve. ठीक है, so we have the transfer functions of the three elements, right? Now taking these three elements and substitute the individual transfer function into equation 15.31. 15.31 हमारे पास है this one. अब चूंकि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ चुके हैं तो हमें जीडी भी पता है, के आई पी के टी, तो हम इस में वापस उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्रांसफर फंक्शंस को, एंड देन वी कैन सॉल्व इट एंड फिगर आउट द वैल्यू ऑफ आइडियल फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये अभी फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इसके अंदर पॉजिटिव डिले। पॉजिटिव डिले का मतलब क्या है? द डिले इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जिसमें हम टाइम में बैक या फॉरवर्ड दोनों को शो कर सकते हैं। नेगेटिव, अगर आपके पास e टू द पावर माइनस 2s लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि देयर इज अ डिले ऑफ 2 seconds. So for example, if you have a signal through a system और ये delay है of 2 seconds, तो अब let's say कि if you start your signal at 1 second sine wave है let's say, तो delay से जब आप गुजारेंगे तो delay में this will be 0 and 1, 0 1 2 3. So delay के बाद क्या होगा? So the point is t equals to 1 seconds. यहाँ पे आपके पास जो है it will be delayed. Delayed का मतलब ये है कि ये अब आपके पास जो है तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होगा 3 seconds के बाद आपके पास आएगा। तो 1 second पे when you have a synchronized measurement somewhere, ठीक है, आप कहीं पे मेजर कर रहे हैं मेजरमेंट, तो मेजरमेंट एट 1 second t equals to 1 second पे आपके पास इनपुट सिग्नल u of t अवेलेबल होगा और y of t अवेलेबल नहीं होगा। तो इनपुट पे अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं at t equals to 1, u will be equals to let's say इसको मैं साइन t कह लेता हूं, लेकिन y will be equals to 0। इसी तरह से t equals to 2 पे u जो है वो तो साइन t होगा, लेकिन y जो है वो आपके पास स्टिल 0 है। ओके, सो द पॉइंट इज कि इसमें आपके पास डिले आ रहा है। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट इफ कि अगर आपके पास e टू द पावर प्लस 2 ऑफ s है, e टू द पावर प्लस 2 ऑफ s का मतलब ये है कि ये डिले नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू और वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर, तो ये रियलाइजेबल नहीं है। यही चीज़ मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, अनरियलाइजेबल है। ठीक है, सो इन दिस केस द स्टैटिक और द अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ अप्लाई किया, अगर इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ दिस एग्जांपल को, कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें आप यहाँ पर तो ये है e टू द पावर माइनस 2s, लेकिन अगर आपके पास e टू द पावर प्लस 2s है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि अगर आपने 1 सेकंड पे अप्लाई किया है सिग्नल, आपने अभी अप्लाई किया ही है, ठीक है, 0 1 -1 -2। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि अब यहाँ पे जो इसका टाइम है, लेट्स से दिस इज 0 1 2 -1 and -2, let's just focus here and we will continue from
here in the next lecture. So what I'm talking about is 0, 1, -1, -2. तो मैं ये वाली वैल्यू पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, जबकि आपने अप्लाई ही, सो यू आर अप्लाइंग और आप उससे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं जबकि आपने अप्लाई बाद में किया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल, मैं ये अपलोड कर दूंगा, इसको देखिएगा और फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस?